So, the guest this evening, we have Swati Agarwal. Um, while she's getting on board and while we are waiting for Swati, I will give you some introduction to what we are trying to do. Shophealthy.in. Hi Anand, hi Swati, hi guys. Let me give you a quick introduction to what we are doing. Every week on Shop Healthy, we are featuring doctors, health practitioners. Hi Sushma, hi Bhavna. We are featuring all the doctors, health practitioners, whoever has onboarded with us so that you guys can meet them. Hi Harsha, hi people. So nice to have you here. So today's guest, let me quickly send her a request so that she can join us, and then I will do an intro so that Swati, I have sent you my request and we're waiting. Hi. Hi, Hi, Swati. Nice to see you here. same here. How are you? Welcome. Good. How are you? Welcome to ShopHealthy.in Weekly Live. Thank you. So viewers, thank you for joining. I would like to introduce our special guest this evening. So Swati, I'll just read because there is so much that she has done. I don't want to, sound wrong. Swati has been working in the healthcare industry for the last 11 years, right? Swati, 11? Yes, And 11 years. from what she tells me, she has done so much. She's done amazing work. Started with hospital as a dietitian. She has taken in IPD and OPD patients. She has been invited on TV for so many interviews on nutrition and healthcare. And she has been working in the FMCG industry with brands like Abbott, Saffola, India Gate, Basmati Rice, Kellogg's, and so many more. So Swati, today she's also a diabetic educator trainer. Right, Yes. Swati? So I'm so happy that you agreed to give us your time this evening. Thank And I have women and I have men who have women friends, sisters, whoever. So I would like you to address our viewers. We have so many topics lined up today. I think just go ahead and start and we'll take questions as we go on and then floor is yours. Done. Hello, everyone. As she introduced, I am dietitian Swati Agarwal. See, today the topic which I am going to discuss is about women's health. This is the main topic, and I think being a woman, we should take care of our health. हम लोग सारे काम करने पसंद करते हैं, लाइक हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हम अपने हेल्थ के बारे में हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं उस चीज को. फिर लेटर ऑन स्टेजेस में क्या होता है, वो इतनी क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाती है कि हम फिर पता ही नहीं, उस टाइम पे जब हम पता करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लेटर ऑन स्टेज हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं. So better to avoid that condition, we should follow few things. So मुझे पता है आप लोगों को भी वो सब चीजें पता होगा, लेकिन एक बार दोबारा रिकॉल करना वो अच्छा हो जाता है कभी कभी. तो सी, इसमें जो थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. उनके बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या क्या होता है. जैसे अगर हम बात करें वुमेन की, तो उनमें स्टेमिना थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू मैन. उनका जो कैलोरी बर्निंग रेशियो है आपका, वो आपका उसमें थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू मैन. एब्डोमिनल ओबेसिटी मेन में होती है, एंड इफ यू टॉक अबाउट वुमेन तो उनका लोअर ओबेसिटी ज्यादा होती है. लोअर ओबेसिटी मतलब आप बहुत ज्यादा देखोगे, इफ वी कंपेयर वुमेन, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे केसेस में उनके टमी पे, हिप पे, बटक्स पे, थाइस पे फैट का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है. या हम लोग चाहते हैं नॉर्मली कि हम लोग वेट कम करें, इंच लॉस हमें बेसिकली लोअर एब्डोमेन से ज्यादा हो. we are prone to get anemia, the reason you all know, menstrual cycle and all जो हम लोगों को होता है, and hemoglobin जो है मैन का वो अच्छा होता है. तो बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वुमेन्स को क्या करना चाहिए, हमें अच्छी सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट्स की डेली भी आप एक्सरसाइज करोगे, इट इज जस्ट लाइक ब्रिस्क वॉकिंग या कार्डियो एक्सरसाइज, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू अंटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग कोई क्रॉनिक डिजीज. आपको साउंड स्लीप जरूरी है, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप इज मैंडेटरी फॉर यू. पानी बहुत अच्छे से पियो, बहुत बेसिक बेसिक चीजें अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर वी विल बी हेल्दी. आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ अ क्यूट टॉडलर, ही इज 16 months now. तो हाँ, टेकिंग केयर ऑफ माई डाइट एंड हेल्थ ऑल्सो. बेसिकली हमारा स्ट्रेस फ्री माइंड होना चाहिए. आई नो बहुत सारे काम हम लोगों के पास होते हैं, तो इट इज नॉट
मतलब पॉसिबल नहीं है कि हमारा स्ट्रेस फ्री माइंड है, बट वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम डाइट और एक्सरसाइज भी अगर हम इतने अच्छे से फॉलो करेंगे तो थोड़ा बहुत कोप अप होने के चांसेस रहते हैं। रेगुलर चेकअप जरूरी है, जो हम बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। मेंटेन करेक्ट वेट, ये हम लोगों को बेसिकली ध्यान देने वाली चीजें होती है। नाउ अगर हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए, जैसा हम लोगों ने मेंशन करा भी था कि बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वो क्या क्या बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए बीइंग अ वुमेन जो हम लोगों को करवाने हैं, सो दैट लेटर ऑन स्टेजेस पे हमें कोई इशू नहीं और हमें टाइमली पता लग जाए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन कोप अप विद दैट बाय फॉलोइंग गुड थिंग्स। तो उसमें फर्स्ट हमारा है, वी शुड नो व्हाट इज अर BMI, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स हमारा है, अगर हम कैलकुलेट करें तो वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर्स पर। तो उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ रेंजेस निकाली है, जिसमें नॉर्मल वेट कितना, नॉर्मल वेट में कौन आ रहा है, ओवर वेट में कौन आ रहा है, ओबीज कैटेगरी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कौन फॉल कर रहा है, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें BCA की जरूरत होती है, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। वैसे नॉर्मली वर्बली भी अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट आवर BMI। सेकेंड इज ब्लड शुगर लेवल, हमें ब्लड शुगर लेवल्स अपने मॉनिटर करने चाहिए, हमें प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी चाहिए उनकी। थर्ड अगर हम बात करेंगे, दैट इज लिपिड प्रोफाइल, जिससे हमें मालूम पड़ जाए हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना जा रहा है एंड ट्राइग्लिसराइड्स कितने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर, वी शुड ऑल्सो बी नोइंग कि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो, इसलिए हम लोगों को वो टेस्ट भी करवाने चाहिए। कोई ज्यादा टाइम टेकन नहीं है, ब्लड सैंपल लेना है उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम घर पे भी बुला सकते हैं और अपनी स्क्रीनिंग करवा किसी किसी टेस्ट के लिए। फिर है हमारा हीमोग्राम। हीमोग्राम बेसिकली क्या है, इट इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें फिर आपका पता करा जाता है कि क्या क्या आपके हैं, लाइक RBC WBC काउंट्स वगैरह कितने हैं, प्लेटलेट काउंट कितने हैं, जस्ट टू सी कि वेदर वी आर गोइंग फॉलिंग इन द नॉर्मल रेंज और नॉट। नेक्स्ट फिर हमारा आएगा यूरिन टेस्ट। हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज्यादातर गर्ल्स में आपने देखी होंगी, वुमेन्स में UTI वगैरह की, यूरिन टेस्ट वो सब हमें करवाने जरूरी है। और यूरिन टेस्ट के अलावा, यूरिन टेस्ट से बेसिकली पता लगता है कि हमें कोई किडनी में इश्यू नहीं है या फिर UTI का इश्यू नहीं है। तो ये सारे मेजर स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो हमको रेगुलरली बेसिस पे करवाने चाहिए। Regularly, Swati, can you tell me how often? Once a year? See, once every 2 to 3 years until age 40, if reports are coming normal. बाकी रेस्ट डॉक्टर विल टेल कि अगर हमारे इसमें कोई भी इश्यू आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट्स में, इफ दे आर नॉट शोइंग द नॉर्मल रेंज, देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ओनली दे कैन टेल। बेसिकली जैसे ब्लड शुगर लेवल है, वो तो अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, वो तो फिर डेली मॉनिटर करने की जरूरत है। इफ दे आर फॉलिंग इन नॉर्मल कैटेगरी, तो फिर हाँ, वंस एवरी 2 to 3 years means until age 40. Okay. And 40 के बाद every year? 40 के बाद, yes, 40 के बाद every year. This again I am talking if the person is normal, they are not having any medical issue like that. Okay. Done. Now Yeah. I talk about common health issues which women generally face. उसमें हमारा आता है PMS, that is post premenstrual disease, obesity Yeah. हो गया, PCOS PCOD, अर्थराइटिस हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। और अगर हम बात करें डिप्रेशन, बहुत ज्यादा ये इश्यू होता है बेसिकली, मेनली जो गर्ल्स फेस करती हैं। जब वुमेन में कॉमन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसमें, बाकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है ना। तो अगर मैं बात करूं प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एज सच कहने को तो कुछ भी नहीं है, पर होने को बहुत बड़ी चीज भी है। हम लोगों का बेसिकली 14th डे से ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है एंड दे लास्ट अंटिल 7 days। जब हम लोग का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है तब तक इट कैन बी माइल्ड और मॉडरेट। अगर आपका बहुत ज्यादा माइल्ड है तो शायद पता नहीं लग पाता। मूड स्विंग्स देखे होंगे, बहुत लोगों को हो जाते हैं जब उनका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है, तो दीज आर सिम्टम्स। फटीगनेस शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट में लंपनेस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई। तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि बेसिकली ये चीजें इसलिए हमें हो रही है, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जस्ट बिकॉज हम लोगों को अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी शुरू होने वाली है इसलिए। नाउ व्हाट ऑल आर द कॉजेज? कॉजेज हमारा हो सकता है स्लीप हम ढंग से नहीं ले रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और उसके साथ विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, डिक्रीज मिनरल इनटेक है इस वजह से।
Now, how we can do the treatment is again by lifestyle modification, having healthy diet, doing proper exercise. You can do yoga also. कोई इसमें issue नहीं है. By these all things we can get cure. अगर हम डाइट की बात करें, अगर कोई जानना चाहता है what all should be the diet which we should take it if we are having premenstrual syndrome, see low salt intake बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें, क्योंकि उसमें आपका टेबल सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिल्कुल से मतलब सॉल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टेबल सॉल्ट थोड़ा सा अवॉइड, टेबल सॉल्ट अवॉइड करिएगा. लोना सॉल्ट रखना जिसमें लो सोडियम सॉल्ट हो, ठीक है. उसके साथ हमको होल ग्रेन्स लीजिए आप, लाइक होल ग्रेन्स हो गया, वीट ले सकते हो, राइस ले सकते हो, ब्राउन राइस हो गया, ओट मील्स हो गया, क्यूनिया हो गया, पानी खूब सारा लेना है आपने. दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू कैन टेक इट इफ यू आर हैविंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज कमिंग आउट टू बी अ पीसीओडी एंड पीसीओएस. बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको अगर पीसीओडी पीसीओएस होता है तो उनको बेसिकली फर्टिलिटी रेट में प्रॉब्लम आता है, कंसीव नहीं कर पाते. और सबसे ज्यादा मेन इशू जो हम फेस करते हैं जब हमारी शादी हो जाती है, फिर हम प्रेगनेंसी में चाहते हैं कि हमें प्रेग्नेंट होना है, बहुत लोगों को तब पता लगता है कि यस दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू. फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना, उसके बाद फिर कंसीव करना, सो दैट इज वेरी लेंथी प्रोसेस. तो हम लोगों को उसके टेस्ट करवाने चाहिए कि व्हाट आर हार्मोनल टेस्ट हम लोगों को करवाते रहना चाहिए कि वेदर वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट. क्योंकि अभी क्या है कि अभी बहुत हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है. एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है. वही अगेन बीइंग अ वुमेन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे पास कि हम इन कुछ कुछ चीजों को निग्लेक्ट करते हैं. हमें लगता है नहीं हम ठीक है तो हम हार्मोनल टेस्ट क्यों करवाएंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें पीसीओडी और पीसीओएस का कॉज, दे आर अभी तक अननोन. बेसिकली व्हाट वी बिलीव इज कि लाइफस्टाइल अच्छा हो, डाइट अच्छे से रखोगे आप, एक्सरसाइज अच्छे से करोगे तो यू विल बी गेटिंग, मतलब कोप अप आपका होगा उससे. ठीक है, इसमें आपका क्या पीसीओएस पीसीओडी में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली, जिनको हर्सुटेनिज्म हो जाता है और फूड एडल्ट्रेशन की वजह से होता है, एनवायरमेंटल केमिकल पोल्यूशन हो गया उसकी वजह से है आपका. तो इसमें आपका थिनिंग ऑफ हेयर हो जाएगा, फेशियल ग्रोथ बढ़ेगी, बेसिकली मेल हार्मोन्स उनका सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हम डायग्नोज कभी भी कर भी पाते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी है. इसका ट्रीटमेंट के लिए डाइट, एक्सरसाइज यही रहेगा, अच्छे से खाओ. और डाइट के लिए आई विल सजेस्ट कैल्शियम इंटेक अच्छा रखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो आप, और इसेंशियल फैटी एसिड लाइक देसी घी, जो बहुत लोग मना करते हैं, देसी घी लो पीसीओडी पीसीओएस में. स्लीप अच्छे से रखो, पानी खूब सारा पियो, लाइक राउंड अबाउट 12 ग्लासेस से 14 ग्लासेस का इंटेक आप रखो, दैट विल बी गुड. अगर ब्लोटिंग का हो रहा है तो ब्लोटिंग के इश्यू में अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ रहे हो तो हैव जीरा वाटर या मोरिंगा वाटर ऐसा ले सकते हो. कैल्शियम इंटेक हमें बढ़ाना है तो दूध लो आप उसके लिए. ब्लोटिंग इश्यू हो रहा है तो हल्दी वाला दूध ले सकते हो. ऐसे हम चीजें और फॉलो कर सकते हैं. बेसिकली बहुत लेंथी टॉपिक है, अगर हम जाएंगे पीसीओडी पीसीओएस के लिए. अगर आपको लगता है कि हम अगर उसके बेसिकली उसकी डाइट के लिए हमें फोकस करना है तो हम ऐसा कोई लाइव सेशन बता देना, उसके अकॉर्डिंग वी विल प्लान इट. श्योर. तो स्वाति जी आप ये ठीक है, डन. को स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो वो आपके कंसल्ट को भी बुक कर सकते हैं शॉप हेल्दी से, एंड यू कैन टारगेट एग्जैक्टली व्हाट इज देयर प्रॉब्लम एंड एड्रेस इट, राइट? हेल्प देम आउट. या आई कैन हेल्प देम आउट विद दिस. अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर. ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर के लिए हमें अपना ध्यान रखना होगा कि बेसिकली कोई नॉट या लंप फॉर्मेशन या आपको कोई बेसिकली आर्म पिट पे कोई नॉट या लंप का फॉर्मेशन हो. अगर ऐसा कुछ हल्का फुल्का भी अगर आपको लगता है, प्लीज 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 उसकी स्क्रीनिंग करवाइए जिससे कि आगे कोई इश्यू नहीं हो. उसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होगा, मेमोग्राफ्स होगा, मेमोग्राम्स जो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और भी होंगे तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा. अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि आपको लंप हो रहा है या आपको पेन हो रहा है या निप्पल के आसपास कोई डिस्चार्ज, निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट निप्पल से,
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज वुमेन हार्ट डिजीज। वुमेन हार्ट डिजीज में बेसिकली रिस्क फैक्टर्स फॉर वुमेन क्या, आजकल बहुत कॉमन है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है ना, और उसमें हमारा हम कंजम्पशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो हार्ट इश्यूज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ फैक्टर्स में, तो नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, जैसे मैंने बोला आपको कि वो हम लोगों का टमी, हमें फोकस करना होगा कि हमें ओबेसिटी कहाँ से कम करना है, लाइक बेसिकली टमी हो गया या हिप्स हो गया या बटक्स हो गया या थाइज हो गया, ठीक है। उसमें अब इट इज वेरी मच नेसेसरी कि वी शुड बी नोइंग व्हाट इज आवर आइडियल बॉडी वेट। तो आइडियल बॉडी वेट के लिए हमें नॉर्मली, अब बार बार तो हम नहीं जाएंगे कि हम डाइटिशियन के पास चले गए या हमने अपना बेसिक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करने चले गए, तो एक फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा ही फॉर्मूला है वो, फॉर वुमेन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल बॉडी वेट वी कैन कैलकुलेट इफ वी आर टेकिंग हाइट इन सेंटीमीटर माइनस सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 100 डिजिट, तो वो हम अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई अभी Say that again, Swati. Height in centimeters. in centimeter, if we subtract that digit in centimeter which is coming from 100, suppose अगर मेरा है 163 मेरी height है, I am women, and if I am subtracting from 100, तो आपका आएगा उसमें 163 is my height and 63 should be my ideal body weight। फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लेमैन टर्म बात करें तो जो हम इजीली जो हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपका ये आएगा। Very नेक्स्ट nice. है This is बॉडी, very simple. नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज बेसिकली वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्लाइंट आया और उसने बोला यार मेरे को वेट लॉस करना है, तो वो नॉर्मली वो बता देगा यार मुझे 15 केजी वेट कम कर रहा है, पर इनिशियली अगर उसको 15 केजीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें भी कुछ तो फॉर्मूला होगा जिससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग दो चीजें कंसीडर करते हैं, एक तो बॉडी मास इंडेक्स है, तो और भी सारे बहुत सारे पैरामीटर्स, लेकिन आई एम सेइंग कि बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो वन ऑफ द मेजर पैरामीटर विच वी फॉलो इट टू, सो दैट वी कैन चेक कि कितना वेट लॉस करना है हमें एंड इन विच कैटेगरी दे आर फॉलोइंग विद द आइडियल बॉडी वेट। नेक्स्ट इज वेस्ट सरकमफ्रेंस। वेस्ट सरकमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड ये सब चीज नॉर्मली ये आपके टूल्स हैं जो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको करवाना है तो आप टेस्ट करवा सकते हो, लाइक ये बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बॉडी फैट परसेंटेज 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। now if I talk about one of the main again जो है हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा विटामिन B12, हाँ ये अभी ज्यादा हो रहा है हम लोगों के में, बीइंग अ वुमेन में हाँ होता है। अगर हम प्रेग्नेंट हैं तभी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते रहते हैं कि विटामिन B12 का भी आप टेस्ट करवाते रहिए। उसमें टायर्डनेस अगर बहुत ज्यादा है, वीकनेस हो रही है, आपका पेल स्किन हो रहा है, सॉफ्ट टंग हो रही है, स्टमक अपसेट है, ब्लीडिंग इन गम्स, सो दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12, लाइक डेफिशिएंसी हम लोग को हो रहा है। सो इन सीवियर केसेस हमें डिफिकल्टी इन वॉकिंग या टिंगलिंग और नमनेस इन फिंगर्स एंड टोज, लाइक ये मेरी मम्मा को शुरू हो गया था ये, तो मम्मा तो बिकॉज शी इज नॉट मेडिकल फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो उनको लगा कि क्या हो गया, मुझे क्या हो रहा है, मैं पता नहीं, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा विटामिन B12 का एक बार करवा लो टेस्ट, वो कम निकला ना। स्वाति, लास्ट वीक इट हैड हैपेंड टू मी, मेरे को हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक इट वाज टिंगलिंग, तो आई वाज पक्का कन्विंस्ड कि दिस इज अ B12 डेफिशिएंसी, एंड आई डोंट नो, आई वेटेड फॉर नॉट लास्ट वीक, दिस इज 2 weeks ago, आई जस्ट कुडंट फंक्शन, ये हाथ ना बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक इट वाज वेरी डम टिंगलिंग सारा टाइम। फाइनली आई हैड टू गो एंड मीट एन ऑर्थो, जिसने डायग्नोज क्या किया, इट वाज वेरी अमेजिंग। ही डायग्नोज्ड दैट आई हैड अ नर्व पिंच फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन. So Okay. it was not a vitamin B12, it was a nerve pinch that happened from here. Quite Yeah. interesting, मतलब human body कहाँ से कहाँ diagnosis निकलती है. तो आई एम सेइंग इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो, बट देयर आर चांसेस कि वो भी हो सकता है। हम विटामिन टेस्ट करवाना पसंद नहीं करते कि यार हमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती,
लेकिन दिस कैन ऑल्सो बी अ कॉज कि भाई जो आपको सेंसेशन हो रहा है इसमें आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो शी इज टेकिंग नाउ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आफ्टर मीटिंग डॉक्टर, तो अभी ठीक है उनका। वाओ, ये कोविड के टाइम में एनीवे आई फील दैट मोस्ट ऑफ अस वुमेन हैव बीन ओवरवर्क्ड, मतलब घर में काम तो बढ़ ही गया है हमारा, लेकिन फिर भी आई हैव सीन सो मेनी पीपल सेइंग आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, आई माने पीपल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम आउटडोर नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 एंड द वेट piling on. I have heard so many people approaching us with this issues. So, yeah. वेट गेन ये वाले भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, दे वांट टू गेट रिड ऑफ। सेडेंटरी लाइफ तो थोड़ा सा ठीक होगा। No, but I think what you are saying, no, that home remedies, जैसे आप बोल रहे हैं जीरा वाटर, मोरिंगा वाटर, those are very important and very easy to do, right? तो आप थोड़ा, हाँ, आप थोड़ा उस पर इलेबोरेट कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, मतलब सुबह उठ के फर्स्ट थिंग यू सेइंग कि जीरा पानी में बॉईल करके पीना चाहिए, या आप मतलब ग्लास वाटर और उसमें आप 1 टीस्पून उसमें जीरा डालो, उसको अच्छे से बॉईल करो, ठीक है, जब ल्यूकवार्म हो जाए यू कैन take it, and in fact with this if you will take 4 almonds, 2 walnut that is overnight soaked in water, ये भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये आप किस चीज के लिए बात करो कि जो मैंने PCOS PCOD में एक जो एग्जांपल दिया था द डाइट, ओके, सो विद दिस व्हाट आई विल सजेस्ट कि भाई आप मिनिमम 2 टीस्पून देसी घी जरूर लो PCOS PCOD में, कैल्शियम का इंटेक भी बढ़ा के रखो उसमें। तो देसी घी इज आल्सो वन मिरेकल हीलर इन सो मेनी कंडीशंस, है ना? मिसकंसेप्शन है देसी घी नहीं खाओ मोटे हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। राइट, सेम थिंग मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि अभी खाओ, आपके बोन्स के लिए अच्छा है, और हमेशा खाओ, यू नो, इवन एट आवर एज आई डोंट थिंक इट एक्चुअली हेल्प्स इन वेट लॉस इज व्हाट आई हैव लर्नड। या फॉर विमेन वी शुड टेक इट देसी घी, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कुछ भी देख लो आप, तो उसमें तो फिर होगा ही होगा। That's nice. So viewers, I think Swati ji has been talking and it has been so very enlightening. Any questions that women who are listening, if they want to ask, I think I would like to take any questions if there is any. Please type and let me know. I think there are viewers who sent us requests to be in the live video, but if you can just type the questions here, Swati will be around a few more minutes for us to answer the questions. Any challenges that you have faced at home, any health challenges that you would like to talk about? Yeah, even if I would like to hear, see, we are doing these lives every week. But if you don't tell us what topics you want to hear about, I will not know how to go back to Swati and tell us कि ये सुनना है. You know, people want to hear about cholesterol management diet, or is it, PCOD diet, or is it anything? So not just Swati, I think I would also like to hear what topic is of most interest and whether this time slot works for all of us. That was another question I wanted to open out today. Okay, 5 o'clock, most people are at work. So is it better for you all to join at 6? DM us, DM me, DM Shop Healthy. Let me know. And I think Swati, if people have questions even after watching the IGTV video, would you be around, or would you be able to answer back as a comment maybe? Yeah, I can do it. Yeah. So, Swati, I think this was really, really helpful. I don't know if you had any other topics in mind that you wanted to talk about today, or do you want to, kind of wrap up, and I would love to save this and share this with people. So a question aaya hai. Let me see if you can look at that. So Sushma says, I have vitamin D deficiency. How do I boost it? Any natural ways, Swati, or anything that you can guide her about? Natural way is this: she can take egg basically with the yellow part, and vitamin D supplement she has to start. Okay, so egg. So if people who are not egg eaters or non-veg eaters, any vegetarian options? Hi Pooja. They can have milk with the, and fortified products are also coming, like fortified fruit juices and with the vitamin D, and the cereals also coming. They can start with that. Okay. So definitely vitamin D supplements or egg yolk is what you are suggesting, right? I to take full egg, like the yellow part, yes. Okay, very nice. And I think dahi, doodh vagera is also a good thing, right? Yes, milk
yeah, milk and its products, they are good to take. Cool. So Pooja just joined us, I think, but Swati ji, I don't have any particular questions from my end today. I think people are, going to save this and come back to this because many of them told me, 5 o'clock, hum abhi office hai, so can we, look at your video later. So I will post this on our Facebook page and on You the can. YouTube channel as well. So we will definitely, get back to you if there are any more questions from our viewers, Swati. Done, done. Thank you. Thank you so much for being with us today and spending your evening with us. Thank you. Thank you, people. Bye.